संत रामपाल जी महाराज एक अजिहे महान संत जिन्हां ने अपनी सत भगती, तत्व ज्ञान, करुणा ਅਤੇ सेवा ਦੇ बल ਤੇ समाज ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਆਦਿ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਯੂਨਿਟ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਭੈਣ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦਹੇਜ ਮੁਕਤ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਉਜੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਫਤ ਭੰਡਾਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਭੂਚਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾਈਏ। गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, हम आपको एक ऐसी बेहद परेशानियों से जूझ रहे व्यक्ति की आत्मकथा
सुनाने जा रहे हैं, जिनको हॉस्पिटल में निराशा हुई और ओझा, तांत्रिकों, देवी देवताओं की पूजा पाठ से भी कोई लाभ नहीं मिला। नशे के आदी हो चुके थे, छुड़ाने का हर संभव प्रयास किया, मगर समस्याएं वहीं की वहीं रहीं। पैसा भी खूब कमाते थे, मगर शराब की लत से सब बर्बाद हो गया था और आत्मा दुखी हुई तो खुद को ऐसा लगता था कि अब मौत निश्चित है। अचानक एक दिन उनके हाथ एक आध्यात्मिक पुस्तक लगी। उसको पढ़ने मात्र से उनकी जिंदगी बदल सी गई और अनेकों लाभ प्राप्त होने लगे। तो कौन सी अद्वितीय आध्यात्मिक पुस्तक थी जिसे पढ़ने मात्र से लाभ शुरू होने लगे? आइए सुनते हैं उत्तराखंड निवासी अमित मनवाल जी की कहानी, उनकी ही जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमित मनवाल है। अमित जी आप कहाँ से हैं? सर मैं तहसील डोईवाला, जिला देहरादून, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। अमित जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 26 जुलाई सन 2021 को ली। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर जो आम हिंदू समाज में जो आम प्रचलन की पूजाएं हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी की पूजा, देवी दुर्गा की पूजा, 9 के 9 व्रत रखना, शिव जी की पूजा आराधना, ये सारी आन उपासनाएं हम करते थे जी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? जी संत रामपाल जी की शरण में आने का एक कारण ये था कि मन में जिज्ञासा तो शुरू से ही थी कि परमात्मा है कौन, वो मतलब कैसा होता है, क्या होता है। क्योंकि मुझे ये लगता था कि आज हम विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं, अगर वहाँ से फ़ायदा नहीं हुआ तो हम शिव जी की तरफ भागे, शिव जी से पूजा नहीं हुई, पूरी संतुष्टि नहीं, तो हम दुर्गा माता की तरफ भागे। तो ये चीज़ें मेरे मन में बहुत सवाल करती थी। फिर सर जो 2011 में क्या हुआ कि मेरे बड़े भाई, मेरा एक बड़ा भाई था, अर्जुन नाम उसका था, उसकी एक सामान्य बीमारी के अंतर्गत उसकी डेथ हो गई। तो उस समय भी मुझे बड़ा झटका लगा कि मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि आदमी एक सामान्य बीमारी से, एक अच्छा खासा आदमी ऐसे मौत के मुंह में चला जाए। और उस समय भी हमने उनकी बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टरों के अलावा जितने भी झाड़ फूंक, मुर्गा बकरा जो भी होता है, ये सब कुछ किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिरी में वो डेथ हो गई। तो वहाँ से भी मेरे मन में ये आया कि ये कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा है और मैं इसकी जड़ को पाके रहूँगा अगर परमात्मा ने मेरे ऊपर दया कर दी। तो मैं उसी समय से ही जो है इसमें मतलब ऐसा लग गया था कि तरह तरह के मैं सत्संग देखता था टीवी पे। संत रामपाल जी महाराज की भी मैं चैनल में ये आता था, जब कभी इंटरव्यू या मतलब कभी ऐसे लगा के देख लिया तो कोई लाइन चलती थी, या गुरुजी जो है संत रामपाल जी महाराज वहाँ कुछ बोल रहे होते थे कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, तो मैं उस समय मतलब उनको देख के कहता था ये लो एक और ये आ गए कि जो है इतने तो पहले दुनिया में पड़े हैं और ये भी कह रहे हैं कि जी ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी से ऊपर कोई है। तो मैंने कहा अगर ऊपर कोई है तो हमें मिले ना, कैसे मिलेगा वो। तो ऐसे करते करते 3-4 साल भी ऐसे निकल गए। फिर जी किसी ने कहा कि 2016 में कि जी आप भागवत कराओ, और भागवत कराने के बाद क्या होगा कि आपके जितने भी पितर वो है वो सब मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, जो भी आपके यहाँ बाधाएं हैं वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। हमने कहा ठीक है जी, वो भी करा लेंगे। वो भी हमने करा के देख ली। उसके बाद 1 साल तक ठीक रहा, लेकिन 1 साल के बाद जो ऐसा हुआ कि 17 से जो, और जिस 17 के बाद तो ऐसा हुआ कि जो ये भूत प्रेत देवी देवता जो परेशान करते ही करते थे, लेकिन उसके बाद मुझे शराब की ऐसी लत लगी कि 4 साल मैंने शराब में मतलब ऐसा जैसे पैसा पानी की तरह बहा दिया। मैं सुबह से शुरू हो जाता, शाम तक, सुबह से शाम तक, सुबह से 4 साल तक मेरा यही चलता रहा और बिल्कुल बर्बादी की कगार पे हम आ गए थे। और घर वाले भी परेशान, रिश्तेदार भी परेशान, सब आस पड़ोस गांव समाज के सब परेशान। वो दूर से देख के भाग जाते थे कि भाई ये शराब पी के आ गया, इसके पास मत जाओ। गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, बच्चों से, पत्नी से मारपीट, माता पिता से मारपीट, गाली गलौज, रिश्तेदारों से, दीदी जीजा फूफा भाई सबसे जो है बिल्कुल। यहाँ तक कि जहाँ मैं काम करता था वहाँ भी जो ऑफिस में जो मेरे सीनियर थे वो भी थोड़ा ऐसे कटने लग गए कि यार इस आदमी को क्या करना है, तो शराबी हो गया, इसने तो ज़िंदगी बर्बाद कर ली थी। मुझे भी खुद ऐसे ही लगने लग गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब मेरा जो एंड है वो सिर्फ डेथ है और डेथ है और कुछ नहीं है। लेकिन 2020 में कुछ ऐसा हुआ लॉकडाउन के दौरान कि हमारा एक थानों, जहाँ मेरा गांव है सनगांव थानों में, वहाँ एक जल जलागम समिति का एक फेडरेशन है, एक समूह होता है किसानों का। तो वहाँ पर हम पहले से कार्यरत थे। तो वहाँ पर किसी ने एक पुस्तक रखी हुई थी, ज्ञान गंगा। तो वो पुस्तक जैसे हम ऑफिस में जाते थे तो मतलब जैसे ऑफिस में अपना वर्क करके अपना चले जाते, तो ऐसे ये मेरी टेबल थी और ऐसे मेरी टेबल में वो रखी थी। अब 1 दिन 2 दिन तीसरे दिन मैंने वहाँ के कर्मचारियों को पूछ लिया कि ये पुस्तक कौन लाया, कि जी ये पुस्तक तो ऐसे रखी है, अगर आपको चाहिए तो आप ले जा लो, ज्ञान गंगा।
तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है मैं ले जा लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। ना कि ले जाओ आप। मैं अपना वो पुस्तक उठा के घर ले आया। अब घर में जैसे ही मैंने वो पुस्तक पढ़नी शुरू करी, पहले मैंने एक पेज, मतलब शुरू के दिन 2 3 4 पेज ही पढ़े। फिर मैंने उन 4 पेजों को पढ़ने के बाद जो पीछे उनमें भक्तों के नंबर होते हैं लिखे हुए कि इन पे कॉल करो, तो मैंने पहले आजमाने के लिए मैंने कहा देख तो लूँ ये सच है कि झूठ है। मैंने उनमें से 3 4 को कॉल किया, कोई महाराष्ट्र के, कोई दिल्ली के, तो उन्होंने बोला बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल सही है, और आप ऐसा उन्होंने ये बताया कि आप जो है ये साधना चैनल पे ऐसे ऐसे सत्संग आता है और उसे सुनो। तो जी फिर मैंने 2020 में जब ये पुस्तक मेरे को मिली तो मैंने वो पुस्तक पढ़ के कुछ थोड़ा बहुत सत्संग सुन के, फिर मैंने यूट्यूब पे जब उन्होंने बताया कि उसमें भी वीडियो आती हैं, चैनल आते हैं, तो मैंने वो भी देखना शुरू किया। तो मेरे मन में ये होता था कि जैसे मैंने एक वीडियो देखी तो मैं ये सोचता था अपने मन में कि अगर ये वाली वीडियो नेक्स्ट आ जाए तब मैं मान जाऊँगा, मैं नाम ले लूँगा कि ये भगवान है। और बस मैं ये सोचता था, जैसे मैं खोलता था वही वीडियो बिल्कुल जो एक उसमें बहुत उसमें चलती है, वो जो राधा स्वामी के प्रवर्तक थे जिन्होंने 52,000 लोगों को नाम दीक्षित किया था, तो उनकी वीडियो से मैं इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था। देहरादून नामदान सेंटर बालावाला से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, और उसके बाद विधिवत जिस प्रकार भी भक्ति साधना बताई आज तक जो है हम करते चले आ रहे हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपका जीवन बहुत ही कठिन परेशानियों से घिरा हुआ था, आप बहुत ज़्यादा नशा करते थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको लाभ मिले? पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से जो है जब से नामदान लिया है तब से सारी दुविधाएं, सारे बुराइयां ये हमारी बिल्कुल एक तरफ छूमंतर हो गई, कहीं दूर दूर तक भी नहीं है। मैं लगभग सर जी मैं 2009-10 से नशा करने का आदी था, लेकिन 2017 से और 2020 तो मेरा ऐसा गया, ये 3-4 साल की, मतलब मैं सुबह से शुरू हो जाता और शाम तक बिल्कुल 2-2.5 बोतलें मेरी डेली की थी। वो पैसा कहाँ से आता था, क्या आता था, कुछ पता नहीं लगता था, लेकिन आता ज़रूर था शराब पीने के लिए। और ये होता था कि मैं शराब पी के कभी उस गली में पड़ा हूँ, कभी रायपुर चौक में पड़ा हूँ, कभी अपनी नदी विधालना नदी में पड़ा हूँ, तो लोग मुझे उठा उठा के घर ले जाते थे। और कई बार ऐसा हुआ कि मैं शराब पी के जो है एक दिन रात को जंगल में ही सो गया। उस दिन वो लोग सड़क के किनारे आए गए, लेकिन किसी ने नहीं, उसने कहा सोने दो से जो होगा, अगर ये मर मुर जाएगा तो सुबह को आएंगे अपना यहीं से कर कुरा के चलेंगे, और हो गया। इसके ऐसे ऐसे 3-4 वाक़े मुझे पड़े कि शराब पी के मैं जंगल में पड़ा रहा, लेकिन हुआ कुछ नहीं, कुछ परमात्मा की कृपा ही रही, जो कुछ नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे जो है जब संत रामपाल जी महाराज की शरण मैंने ग्रहण की, उसके बाद से मुझे एहसास हुआ कि वाकई में मैं इससे पहले भी नशा मैंने छोड़ा, लेकिन जो चीज़ अंदर से जब तक संत रामपाल जी महाराज की कृपा नहीं हुई थी तब तक ये चीज़ें अस्थायी नहीं थी। कुछ दिन के लिए छोड़ते थे, कुछ दिन बाद फिर शुरू हो जाते थे, फिर वही लड़ाई झगड़े, काम इधर उधर, ये करना वो करना, झूठ बोलना, बेईमानी करना, सारे जो है फिर वैसे शुरू हो जाते थे। लेकिन अब जो ये हुआ है ये बिल्कुल अस्थायी तौर पे हुआ है, और ये मान लीजिए कि इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है पूरी दुनिया में कि किसी को किसी बुराई से बाहर निकालने का। सर, आप उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है, और संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ये बात सही नहीं है। संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़ाते नहीं हैं, उनकी सत भक्ति, मतलब उनकी भक्ति विधि तरीके, सही विधि से भक्ति करना बताते हैं कि इनकी मतलब जो सही मंत्र है उनका जाप देते हैं, और जो है सही विधि से ये आडंबर से दूर करते हैं। ये जो जितने भी आडंबर होते हैं, ये कहीं पूजा डालना, ये बकरे मुर्गे मारना, घड़ियाली लगाना, ये करना, इन सब आडंबरों से रहित करके एक सामान्य विधि जो देवी देवताओं के बुलाने की है, उस सत भक्ति द्वारा, सही विधि द्वारा सत भक्ति संत रामपाल जी महाराज देते हैं। जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की सही विधि से भक्ति बताते हैं, तो यह विधि संत रामपाल जी महाराज कहाँ से लेकर आए? वो जी संत रामपाल जी महाराज, ये सब वेदों में प्रमाण है इस चीज़ का। वेदों के द्वारा जो है, ये सब वेदों में जो एक 4 वेदों के अलावा एक सूक्ष्म वेद है, उसमें पूरा प्रमाण है सत भक्ति का, सही विधि जो है हमारे जितने भी देवी देवता हैं इनके सत मंत्रों का, उनसे जो है प्रमाण लेके गुरुजी बताते हैं, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि इस विधि से जो है भक्ति करनी है, तभी लाभ होगा। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे प्राप्त किया जा सकता है? जिस संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए चैनल पे 7:30 से 8:30 बजे तक एक सत्संग आता है, उस पर नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर है, आप किसी भी नंबर पे कॉल करके
आप जब अपना नाम बताएंगे तो वो आपको बताएंगे आप किस स्टेट से हैं, वो तुरंत आपको ये बताएंगे भाई उस स्टेट में आपका, उस जगह, उस ज़िले में आपका नामदान सेंटर है, आप वहाँ पर जाएं और नाम दीक्षा लें। संत रामपाल जी महाराज। धन्यवाद सर। नमस्कार। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अपने आत्मा ये ज्ञान भगवान ने 600 वर्ष पहले बताया था, और फिर उन महापुरुषों को मिले परमात्मा आकर के, जो उनका गुण है, विधान है, अच्छी आत्माओं को मिले। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा उत्तर प्रदेश जिला बागपत वाले को, और स्वामी रामानंद जी काशी वाले का, महर्षि का। तो उन महापुरुषों ने और स्वयं परमात्मा ने हमारे को सचेत करने की चेष्टा की कि जो साधनाएं, जो भक्ति तुम कर रहे हो और जिस भगवान को तुम परमात्मा माने बैठे हो वो परमात्मा नहीं है। जिस स्वामी को, जिस प्रभु को आपने परमात्मा मान रखा, ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा की परिभाषा होती है जो श्रेष्ठ आत्मा हो। श्रेष्ठ आत्मा कभी किसी को मारता नहीं, किसी की टांग नहीं काटता, किसी को अंधा नहीं करता, किसी को रोगग्रस्त नहीं करता, वो परमात्मा होता है। अब कई अनजान जो बिल्कुल माइनस जिनकी बुद्धि होती है जातम में, वो कहते हैं कि ये हम इस बात से चिंतित हैं कि भगवान है कहाँ। भगवान होता तो ये हालत होती लोगों की। जैसे अभी एक दुखद खबर हम सुन रहे हैं कि केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शनार्थ गए हुए श्रद्धालु इन अज्ञानी आचार्यों, शंकराचार्यों द्वारा भ्रमित किए हुए वहां भगवान खोजने गए थे। और आज खबरों में सुनने को आ रहा है कि 15-20 हजार व्यक्ति मारे जा चुके। फ्लड में बादल फट गया और केदारनाथ के मंदिर का पता नहीं कहाँ गया। एक शिवलिंग खड़ा हो टूंड सा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा 600 वर्ष पहले आए। उसके बाद उनके द्वारा उनसे के ज्ञान से परिचित महापुरुषों ने यही ज्ञान सुनाया। और वो कहा करते थे, चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा 600 वर्ष पहले बताया करते थे। और उनसे परिचित महापुरुष आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि चारों युग में संत पुकारे, कबीर साहिब की महिमा गाई है। और कोक कहा हम हेल रे, हमने रुक के मार मार के, आवाज लगा लगा के, शोर मचा मचा के बता दिया कि हम तत्व ज्ञान और सत साधना रूपी हीरे मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। आप इनको नहीं उठा रहे हो, ग्रहण नहीं कर रहे हो, और आन उपासना रूपी इन भ्रमित किए हुए आचार्यों और शंकराचार्यों, ऋषियों, महर्षियों, मंडलेश्वरों के द्वारा भ्रमित किए हुए आप बहुमूल्य वस्तु को छोड़कर कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो। या आन उपासना, इन तीर्थों पर जाके मत्था टेकना, वहां दर्शनार्थ जाना, कल्याण की इच्छा करना, ये तो आपकी भूल है, बाल बुद्धि है। कंकर पत्थर इकट्ठे, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, और ये पर भी लेन जात है दुनिया। पुण्यात्माओं, हमें बड़ा दुख है कि हमारे भाई बहन वहां किसी गंदी मौत मरे केदारनाथ की इस दुर्घटना में। कलेजा मुंह को आता है। हमारी ही दशा ऐसी हो रही है उनकी इस दीनता को देखकर। कोई भूखा मर के अचानक बैठे हैं धर्मशाला की, धर्मशालाएं बह गई है। कोई सो रहा था, कोई भगवान के गुण गा रहा था, आज उनका पता नहीं कहाँ चले गए। तो पुण्यात्माओं, जिनके वो सदस्य मरे होंगे उनकी क्या हालत होगी। तो कैसा है ये लोग। यहां संतों ने, महापुरुषों ने बताया है। नानक साहिब जी कहते, ना जाने काल की कर डारे,
और किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्हानु केड़ा हासावे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा स्वयं आकर के हमें ज्ञान सुनाया करते थे। इन अज्ञानी गुरुओं ने काल प्रेरित होकर अपने स्वार्थवश हमारे तक ये यथार्थ ज्ञान भगवान का दिया हुआ आने नहीं दिया। और कबीर साहब को एक दुलाहा, एक धानक, एक निर्धन व्यक्ति, और फिर लास्ट में एक कवि, और ज्यादा ही किसी ने उपमा दी तो एक भक्त कहकर उनकी फाइल को क्लोज कर रखा था, उनकी हिस्ट्री बंद कर दी थी, लाल को कूड़े के ढेर में डाल दिया था। इस दास को पारखू बनाया, जौहरी बनाया। इस दास ने उस लाल की परख की और ढंडोरा पीटा, अनाउंसमेंट करनी शुरू कर दी कि ये लाल है जिसको तुम पत्थर मान रहे हो और जिनको तुम हीरे मोती समझते हो, वो कौड़ी है, वो बहुमूल्य नहीं है। ठीक है, इस प्रचार के लिए, अपने भाई बहनों तक ये सत्य संदेश पहुंचाने के लिए दास ने और दास के साथ पूर्व पहले समय से लगे हुए मेरे बच्चे और बेटियों ने बहुत कुछ कठिनाइयों का सामना अवश्य करना पड़ा। जेलों में जाना पड़ा, जगह जगह इन नकली लोगों ने, झूठों ने हमारे ऊपर झूठे मुकदमे भी बनवाए बच्चों के ऊपर। लेकिन हमें पता लग गया है कि वो अनजानपने में ये सब कुछ कर रहे हैं। जिस दिन उनको भी ये ज्ञान होगा, वो भी उसी भगवान के बच्चे हैं और वो हमारे साथ हो जाएंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, हमारा उद्देश्य उनको सही दिशा देना है कि जिससे आपका भी, आपके परिवार का भी, और आपके जो इस गलत साधना करके चले गए, मृत्यु को प्राप्त आज प्रेत पितर बने हुए, उनका भी उद्धार हो जाएगा। इस साधना से जो दास बताता है। अब जैसे भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात जो ये मूर्ख लोग करते हैं, जो स्वार्थी करते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया, इन मंदिर, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों की पूजा को ठीक नहीं बताया, मंदिरों में जाने को गलत बताते हैं, भगवान की मूर्ति की पूजा गलत बताते हैं, केदारनाथ, अमरनाथ, इन धामों और तीर्थों पर जाने को गलत बताते हैं। ये हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। पुण्यात्माओं, भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जाता। यदि किसी के पास यथार्थ ज्ञान है और उस ज्ञान के आधार से कोई ज्ञान बताता है, वो तो ऐसा है जैसे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, अग्नि जल रही होती है, आग जल रही है, और बच्चा उस अग्नि के बलते हुए उस जल रहे उस भट्ठी की तरफ चलता है, और उसको कोई देख लेता है, बुद्धिमान व्यक्ति, कि ये बच्चे अग्नि की भट्ठी की तरफ जा रहे हैं, ये जल जाएंगे। उनको जाकर वो उठा लेता है और वो जाना चाहते हैं, उसको अच्छी वस्तु समझ के पकड़ना चाहते हैं, और उसको उठा लेता है तो वो रोता भी है और कहता है मुझे छोड़ दे, इधर ही जाने दे। उसकी भावनाओं को वहां ठेस पहुंचाना अनिवार्य था। यदि उस भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जाता तो जल के मर जाता वो बालक। तो दास का प्रयत्न यही समझो कि यदि आप इसको भावनाओं को ठेस समझते हो तो ये इस प्रकार की भावना को ठेस पहुंचाना दास की मजबूरी होगी, क्योंकि दास इस मार्ग से परिचित हो चुका है। और जहां तक पार बसाओगी, आपको वहां नहीं जलने दूंगा उस आग के अंदर। अपने आत्मा परमात्मा आकर बताया करते थे कि जिन धामों की आप पूजा करने जाते हो, इन धामों की कुछ कम से कम तुम स्थापना देखो कैसी हुई है। इन तीर्थों की ये स्थापना कैसी हुई, और फिर ध्यान से सोचो, विचार करो। आज बालक नहीं हो, आप शिक्षित हो, उनके इतिहास, उनकी जीवनी हमारे पास उपलब्ध है, उनको पुनः विचार करके ग्रहण करो।
उनको त्याग दो। देखो जितने भी तीर्थ हैं, धाम हैं और जितने भी ये पवित्र स्थल हैं, आदरणीय हैं, ये आदरणीय यादगारें हैं, लेकिन वहां जाने से मोक्ष नहीं हो सकता। आपको बहुत बार बताया है, परमात्मा भी आकर स्वयं बताया करते थे और कहा करते थे कि इन धामों पर जाने से आपका मोक्ष नहीं, उल्टा पाप प्राप्त और जीवन नाशी आपका होता है। आपको एक झलक दिखाते हैं ये तीर्थ कैसे बने जहां हम पूजने जाते हैं। देखिएगा एक पुस्तक, ये पुस्तक है हिमालय तीर्थ और ये हमारे शंकराचार्यों द्वारा दिया गया ज्ञान है। ये है जेपी नबूरी, इसका प्रकाशक है। ये देखिएगा हिमालय तीर्थ, जेपी नबूरी, उप मुख्य कार्यकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, ट्रैक्स एंड टूर्स कलकत्ता, और ये यहां से छपे हैं। अब हम इसके आपको ये देखिएगा उत्तराखंड के पंच केदार, ये पृष्ठ नंबर 17 है। यहां से हम प्रारंभ कर रहे हैं। ये 18 पृष्ठ है, यहां से हम ये 17 पृष्ठ है। उत्तराखंड के पंच केदार श्री केदारनाथ भारत के उत्तर नागाधिराज की सुर में उत्पत्तिका में स्थित केदार क्षेत्र प्राचीन काल से मानव मात्र के लिए पावन मोक्षदायक रहा है। इस क्षेत्र की प्राचीन एवं पौराणिक महत्व के संबंध में स्वयं भगवान शंकर ने स्कंद पुराण में माता पार्वती के प्रश्न का उत्तर अपने श्रीमुख से निम्न प्रकार दिया है। ठीक है। हे प्राणेश्वरी, यह अक्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में परब्रह्म तो प्राप्त करके सृष्टि निर्माण का शुभारंभ किया। तभी से स्थान मेरा चिरप्रिय समान है। भगवान शंकर का सुप्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भारत के विख्यात 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग है। सुदूर उच्च हिमालय में समुद्र तल से 11,750 फीट की ऊंचाई पर श्री नर और नारायण ऋषि द्वारा प्रतिष्ठित है। पुराणों के अनुसार इस पुण्य फलदायी ज्योतिर्लिंग की स्थापना के संबंध में इस प्रकार वर्णन, अनंत रत्नों के जनक अतिशय पवित्र केदार नामक अत्यंत शोभा से युक्त शिखर पर पूर्व काल में महातपस्वी अपने आत्माओं तीर्थ और ये धाम कैसे बने हैं इसकी थोड़ी सी झलक दिखाएंगे, फिर दास मौखिक सुनाएगा, वो अच्छा समझ में आएगा। अब देखिएगा, अब हम 18 पृष्ठ पर आगे 17 पर पढ़ लिया। यहां पर पीछे से हमने पढ़ा है, यहां से फिर पढ़े। यह है कि केदार, पवित्र केदार नामक अत्यंत शोभा से युक्त शिखर पर पूर्व काल में महातपस्वी कौन? ऋषि श्री नर और नारायण ने, ये 2 ऋषि थे, नर और नारायण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। इस तपस्या से तीनों लोकों में उनकी चर्चा होने लगी, जिसकी सभी लोकों में प्रशंसा होने लगी। फलस्वरूप भगवान शंकर भी नर नारायण की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर ऋषियों को दर्शन दिए। दोनों ऋषियों ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन से आनंद विभोर होकर स्तुतियों और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना की। भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। भगवान शंकर की यह बात सुनकर उन दोनों ऋषियों ने देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की। यहाँ, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं
और वर देना चाहते हैं तो अपने इसी स्वरूप में जगत कल्याण एवं हमारी पूजा प्राप्त करने हेतु यहाँ सचित होवें, ताकि जगत का महान उपकार एवं भक्तों के मनोरथ आपके दर्शनों से परिपूर्ण हो। इस प्रकार भगवान शंकर नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर वहां सचित हुए। देवादिदेव महादेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो भक्तों के कल्याण हेतु आप सदा सदा के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की कृपा करें। यहाँ आकर आपका दर्शन पूजन करने वाले मनुष्यों को आपकी अविनाशी भक्ति प्राप्त होगी। ऋषियों की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में यह वास करना स्वीकार कर लिया। भगवान शिव से वर मांगते हुए नर और नारायण ऋषियों ने इस ज्योतिर्लिंग और इस पवित्र स्थान के विषय में जो कुछ कहा है वह अक्षर से सत्य है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन तथा यहाँ स्नान आदि करने से भक्तों के लौकिक फलों की प्राप्ति के साथ साथ अचल शिव भक्ति और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी सहज हो जाती है। हिमालय में केदार नामक पर्वत शिखर पर प्रतिष्ठित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। केदार शब्द का शाब्दिक अर्थ है ऐसे स्थान से होता जहां दलदल एवं अति मात्रा में पानी हो। केदार क्षेत्र में यही स्थिति है, क्योंकि भगवान शंकर जलधारा प्रिय हैं। नर और नारायण ऋषियों के पश्चात अन्य ऋषि मुनियों व भक्तों द्वारा यह ज्योतिर्लिंग पूजित रहा। तत्पश्चात महाभारत काल में पांडवों द्वारा गोत्र हत्या अर्थात महाभारत युद्ध में अपने भाई बंधुओं आदि की हत्या के पाप से मुक्त हेतु यहाँ पर देवादिदेव महादेव की आराधना की गई। इसी प्रसंग में पुराण में एक कथा आती है। अपने आत्मा में पहले ये निष्कर्ष बताते थोड़ा, उसके आगे और शेष आपके पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि वर्तमान में एक बहुत दुर्दांत घटना घटी है जिससे आत्मा रो रही है, दुखी है, क्योंकि वो भी हमारे एक तरफ भटक रहे थे। परमात्मा के लिए वहां गए और वहां उनको क्या मिला सर्वविदित है, कहने की आवश्यकता नहीं। अब क्या बता रहे हैं कि नर और नारायण नाम के दो ऋषि वहां तपस्या करा करते उस दलदल में, केदार माने दलदल, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव आगे। तो पुण्यात्माओं, वो भगवान शिव कौन आगे? इस काल के जाल को कबीर भगवान ने आके समझाया है कि ये तो काल जो है, जैसे इसने गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहा कि अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। और गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में इसने बताया है कि मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। तो ये क्या करता है, जैसे कोई ऋषि साधना करता है, उसको किसी को विष्णु रूप में दर्शन दे देता है अपने पुत्र विष्णु के रूप में, तो वो ऋषि विष्णु का उपासक बन जाता है, उसी का अनाउंसमेंट करने लग जाता है, उसी का ज्ञान प्रचार करता है कि सर्वेश्वर है, महेश्वर है, सबकी स्थिति पालन और संहार करने वाला यही है। और कोई ऋषि साधना, कोई भक्त साधना कर रहा है तो किसी को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे देता है, तो वो कहता है कि ये ब्रह्मा जी हमारे सामने रहते हैं, देवता यही भगवान है, सर्वशक्तिमान है, मैंने समाधि दशा में इसके दर्शन किए, ये छुपाई है अपने आप को। इससे उन ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भ्रम हो जाता है कि हम ये सचमुच भगवान है। इसी कारण से शिवपुराण में प्रकरण आता है, विद्वेश्वर संहिता के अंदर, एक बार ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के पास और ब्रह्मा जी कहने लगे कि पुत्र तू मेरा खड़ा होकर सम्मान क्यों नहीं करता, मैं तेरा पिताया हूँ, मैं तेरा जनक हूँ, सारी सृष्टि का उत्पत्ति करता हूँ। विष्णु जी लेटे लेटे कहते हैं कि आजा बेटा बैठ जा, तू मेरा पुत्र है, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सबका रचने वाला हूँ। इस बात पर दोनों लड़ पड़े। फिर ये काल आ गया वहां पर शिव रूप धारण करके इन दोनों के बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, तेजों में स्तंभ। ये लड़ना भूल गए, ऊपर नीचे ढूंढने लगे, फिर खुद आके प्रकट हुआ शिव रूप में
फिर इनको ज्ञान बताने लगा, क्या पुत्रो, तुमने अपने आप को ईश मान लिया तो यू आर नॉट गॉड, तुम भगवान नहीं हो। और तुमने 2 जॉब, 2 डिपार्टमेंट, 2 विभाग मेरे से प्राप्त किए हैं। मैं चीफ मिनिस्टर हूं यहाँ का। ये काल जो है एक ब्रह्मांड में चीफ मिनिस्टर का काम, इसका रोल समझो। और अन्य ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक विभागीय मंत्री है। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी और सतोगुण विभाग के विष्णु जी। यानी रजोगुण से जो क्रिया हो रही है, जिसको हम उत्पत्ति कहते हैं, ये उत्पत्ति करता नहीं है, ये तो उत्पत्ति करवाता है। संतान उत्पत्ति हम उसके प्रभाव से करते हैं। और सतिथि, ये विष्णु जी कहते हैं, उत्पत्ति और सतिथि जो तुम्हें दी है मैंने, ये मेरे से प्राप्त है, तुमने तप करके प्राप्त किए, मैंने तुम्हें विभाग दिए। इसी प्रकार रुद्र और शिव को भी, शंकर को भी मैंने अलग से 2 करते दिए हैं, संहार और तिरोभाव। और बोलने वाला 5वां ये काल है। ये कभी अपने वास्तविक रूप में नहीं आता, ऐसे कभी विष्णु के रूप में, कभी शिव के रूप में, कभी ब्रह्मा जी के रूप में आता है। तो इसके जाल को समझने के लिए परमात्मा ने कथा सुनाई अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, जो धर्मदास जी ने कबीर सागर में लिपिबद्ध की। परमात्मा ने कहा कि ये गलतियां करके आत्मा यहाँ आ गई इस काल के साथ, इसके 21 ब्रह्मांड वाले विमान में बैठ के, और इसने यहाँ इनको इतना दुखी कर दिया। फिर ये चिल्लाने लगी, हे भगवान हमें सुख दे, हे भगवान हमें सुख दे। हम हाहाकार मच गई। तब परमात्मा कहते, मैं आया अपने ही पुत्र जोगजीत का रूप बना करके, मैं वहां आके खड़ा होगा जहां तपस्या के ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये नित्य खाता है, आहार करता है। और मेरे वहां आने से उस तपस्या की जलन बंद हो गई। वह आग जो कि तो गर्म ऐसे की ऐसी है, वो तपस्या, वो तई, वो बड़ी जो तवा होता है जिस पे उनको भूना जा रहा था। लेकिन उनको उन परमात्मा की कृपा से उस पर उपस्थित जितने भी 1 लाख जीव थे मनुष्यधारी, जो वहां गई थी उनकी आत्मा, उनको कष्ट बंद हो गया, उसका ताप बंद हो गया, तपत। तब उन्होंने ऊपर में उठाकर देखा कि भगवान हम कौन से दुख, कौन से पाप का यहाँ कष्ट भोग रहे हैं। तब परमात्मा ने कहा कि ये तुम्हारे इस लोक के पाप का दंड नहीं तुम्हें, ये दंड है, तुमने सतलोक में ये पाप किया था। परमात्मा को छोड़कर तुम, परमात्मा अपने को छुपा कर कह रहे हैं कि तुम भगवान को छोड़कर वहां सर्व सुख संपन्न प्राप्त थी, आपकी कभी मृत्यु नहीं होती थी, कोई कष्ट नहीं था। उसको छोड़कर तुम इस काल के लोक में आ गए। यहाँ पर आज जिस कार को, जिसको ठीक हो, जिस बंगले को, जिस बेटा और बेटी को आप अपना मानते थे, क्या तुम्हारे साथ आया कोई? अपने आत्मा वहां तो सारी समझ में आ जाती है कि हाँ कुछ नहीं आया जी। फिर और तुम मरते थे, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा कार है, ये कोठी है। और भक्ति करते थे तो गलत कर रहे थे। हम प्रत्येक युग में जाते रहते हैं पर तुम सुनते नहीं। तब वो कहने लगे, सभी भगवान हमसे गलती होगी, मैं माफ करो। कहते ऐसे माफ नहीं होगी। जब तुम जाए धरो जग तन देहा, तब तुम करना मम सत सबद सनेहा। जब कोई मेरा संत मेरी महिमा गाता हुआ तुम्हें मिल जाए और तुम्हें मानव शरीर प्राप्त हो, तुम तुरंत ग्रहण कर लेना और फिर तुम उस सत भक्ति करके उस लोक में चले जाओगे। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ खाऊं। इतने में वो काल आ जाता है। प्रतिदिन उसने टाइम फिक्स कर रखा है, इतने समय के बाद ये सभी आत्माएं उसके तपस्या पर भुन कर उनके अंदर से जो गंध वो निकालता है, वो निकल कर उनको ऐसे उड़ा देता है, वो गंध रह जाता है। अब आप देखते हो यहाँ प्राणी गंदे पदार्थ तो बहुत आसानी से ग्रहण कर लेता खाने के लिए, पीने के लिए। शराब पीना, भांग पीना, सुल्फा पीना और तंबाकू पीना और फिर मांस खाना, चटपटे अटपटे खाना, ये तो बहुत खुश होकर ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि ये चाहता है कि जितना ये गंद अटपट खाएंगे उतना ही के अंदर गंदी वासना ज्यादा बनेगी और तपस्या के ऊपर भूनने से वो सारी वासना वहां रह जाती है और ये जीव वहां से कर्म ज्यों के त्यों रहते हैं, वो वापस आ जाता है, मरता नहीं। फिर अपने कर्मानुसार 84 लाख योनियों में किसी भी स्वरूप उसके कर्मानुसार वो जाए, उस योनि में वो चला जाता है। तो उसी समय वो काल आ जाता है और काल ने देखा अपने बड़े भाई जोगजीत को, जिस रूप में परमात्मा ने सतलोक से उसको निकाला था। जिन्होंने सृष्टि रचना पढ़ रखी है बच्चों, उनको खूब याद है। अब दास ज्यादा हिंट देगा आज के सत्संग में। सृष्टि रचना कभी आपको बताएंगे और आपको सीडी वगैरह बनाकर भी दे रखी है, वो भी देख सकते हो। उसने सोचा, काल ने, इस ज्योत स्वरूपी निरंजन सरपुरुष ने
कि मन में आई कि जोगजीत कैसे आ गया, ये कोई परम पिता का कोई संदेश लेकर आया है, पहले इसे वो संदेश जानता हूं, क्या आज्ञा लेकर आया है ये भगवान की, और फिर आज इसको कूटूंगा, पिटाई करूंगा इसको मारूंगा, खूब कूटूंगा, क्योंकि इसने मुझे वहां से मार कर निकाला था, मुझे जबरदस्ती निकाला था सतलोक से। तो मुझे परमात्मा बताते हैं कि धर्मदास मुझे देखकर काल भयंकर हो गया, और पहले मुझसे कहा कि पहले जोगजीत कोई आज्ञा है भगवान की, परमात्मा की, पिता की, वह मुझे बता, और फिर जोगजीत तुझे छोड़ू नहीं गा, तूने मुझे वह मार कर निकाला था। तब परमेश्वर जो जोगजीत रूप में वहां उपस्थित थे, विराजमान थे, खड़े थे, विद्वान थे, परमेश्वर ने कहा धर्मदास, मैंने उनसे कहा, परमात्मा बता रहे हैं, धर्मदास जी लिख रहे हैं कि मैंने उससे कहा कि सुन ले आदेश परम पिता का, कि ये भोली आत्मा तेरे साथ आ गई थी, इन्होंने तो गलती की सो की, पर तूने इनका कैसा सांग निकाल रखा है, कैसे कैर ढा रहा है इनके ऊपर, तू कोई गधा बना दिया, कोई गधी बनाई, कोई कुत्ता, कोई कुतिया, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मार रहा है, हाहाकार मचा रखी। तो इसने कहा कि पिताजी ने मुझे श्राप दिया था, और जिस श्राप अनुसार मुझे भूख लगती है तो मैं तो इनको खाऊंगा, बनाऊंगा, पैदा भी करूंगा। परमात्मा ने कहा कि चल इन्हें गलती कर दी, तो खा भी रहा है, सारे काम कर रहा है, फिर इनके किसी का हाथ काटे, किसी की टांग कटे, कोई अंधा, कोई कैंसर से पीड़ित, ये जुल्म क्यों कर रहा था इनके ऊपर। तब इसने कहा कि मैं तो सत्य का राज करता हूं, मैंने परमात्मा को वचन दे रखे हैं, और जैसे कर्म जो करेगा वैसे भोगेगा, मुझे इसमें कोई लेना देना नहीं है। अपने आत्माओं, यहाँ की इस सारी व्यवस्था ऐसी है इस काल के लोक में। एक तरफ तो सरकार शराब के ठेके, फीम के ठेके, भांग के ठेके खोलती है, और फिर शराब पीकर कोई इधर उधर जाता है उसको अंदर कर देता है, तो शराब पी कर गलत गतिविधि की, और शराब पी कर रामायण बचेगा, वो भांग पी कर रामायण पढ़ेगा, गलत गतिविधि करेगा वो। तो इसने ऐसा कर रखा है कि मैं तो सत्य का राज करता हूं, जो जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल देता हूं। अब ये इतनी बकवादों का की आविष्कार करवा दिया, तो फिर ये भोली आत्मा तो गलतियां करेंगे ही करेंगे, तो कहते भोग लेंगे। इसने थोड़ा लेना देना, हम इसके बच्चे नहीं है, हम इसके बच्चे होते तो ऐसा दुख देता ही है। आज केदारनाथ के ऊपर 20,000 आदमियों को मार देता अपने बच्चों को। ये हम इसके बालक नहीं है, हम इसकी प्रजा नहीं है, हम उस परमात्मा की प्रजा है, सतपुरुष के बच्चे हैं, और हम अपनी गलती से इसकी कैद में फंस गए हैं। यहाँ से निकालने का एक तरीका है, हम स्वेच्छा से आए हैं, स्वेच्छा से ही वापस जाएंगे। जब हमारी यहाँ के लोग से दुखों से इतना मन हट जाएगा, और वहाँ के सुख से हम इतने प्रभावित और प्रेरित हो जाएंगे, और फिर सत भक्ति करेंगे, तब हम वहाँ जा पाएंगे। इसलिए आपको सारा ज्ञान प्रमाण दिखाए जा रहे हैं, ताकि आपका यहाँ से मन हटे और भक्ति पर डटे, और फिर वहाँ चलेंगे हम। तब इस परमात्मा ने कहा जोगजीत रूप में कि मैं नीचे जाऊंगा, परमात्मा ने भेजा हूं, और वहां जाकर तेरे सारे जाल को समझाऊंगा, और सबको परमात्मा की महिमा बताऊंगा। आपने जो सतपुरुष है, जो वास्तव भगवान है, यथार्थ स्थान है, उसका तो नामो निशान मिटा दिया, तू स्वयं भगवान बन बैठे यहाँ का। और सबको बताऊंगा, और एक ऐसा गुप्त मंत्र दिया है मेरे को, वो मंत्र उनको दूंगा, सतनाम और सार नाम। और फिर उसने कहा, उस आग तो अंदर से जल गया वो सारा, ये तो नाश करेगा मेरे बड़े बड़ाए काम का। और जब उसने ये बात सुनी तो एकदम भयंकर होगा, कहने लगा तू मेरा बाग उजाड़ने जा रहा है, तू मेरा नाश करने जा रहा है, तुझे अभी खत्म कर दूंगा, तुझे तो जाके दिखाना नीचे। परमात्मा ने कहा कि ऐसा सुनकर काल भयंकर होगा मेरे ऊपर। और धर्मदास ऐसे अटैक किया उसने, मेरे को बिल्कुल खत्म करने के लिए दौड़ के आया, और मैंने सतनाम का सुमन कर दिया, नाम का सुमन शुरू कर दिया। इस नाम के अंदर धर्मदास ऐसी प्रबल शक्ति है, इसके सामने कोई भी देव, कोई यक्ष, कोई भी यहाँ का काल तक भी नहीं ठहर सकता। मेरे पास ऐसा मंत्र है।
पुण्यात्माओं, ये परमात्मा धर्मदास जी के माध्यम से, और धर्मदास जी को तथा हम सभी को सतर्क करना चाहते हैं कि कभी भी आपके ऊपर कोई भी आपदा आती है किसी भी प्रकार की, तो नाम का सेवन अवश्य करना कुछ देर। फिर जो टेंशन है वो है, लेकिन समन एक बार कर लेना, आप देखना फिर उसका प्रतिफल कैसा होगा। तो कहते हैं मैंने समन शुरू किया और काल ऐसे गिर गया जमीन के ऊपर, ऐसे गिर गया उस पृथ्वी पर जहां वो रहता है, वहां पर जैसे पक्षी की पंख कट जाते हैं और पड़ा पड़ा तड़फ रहा होता है। तो वो समझ गया। उसमें वैसे तो काफी विस्तार लिखा है, बाकी हम थोड़ा बताएंगे जितना आवश्यक है, क्योंकि हमने समझना इस ज्ञान को। बाकी ज्ञान ज्ञान है, समाधान बिना काम बनेगा नहीं, समाधान ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार जी। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਲਦਿਸ਼ ਕੌਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਲੱਦੇ ਵਾਲੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਕਦੋਂ ਲਈ? ਜੀ ਅਸੀਂ 17 ਸੰਨ ਚ ਲਈ ਸੀ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਭਗਤੀ ਅਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਸਹੁਰੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ, ਚਿੱਟੇ ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੰਗਰ ਕੁੜੀਏ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮੰਗਦਾ ਬਾਬਾ, ਪੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, 14 20 ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਮਤਲਬ ਲੰਗਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਡੇ। ਫਿਰ ਕਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, 3 ਦਿਨ ਭੰਡਾਰਾ ਚੱਲਣਾ ਲੰਗਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਢੋਲਕੀ ਚਿਮਟੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਢੋਲ ਵਜਾਉਣੇ, ਬੱਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ 3-3 4 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ, ਥੈਂ ਥੈਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ, ਜਵਾਲਾ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਤਾ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਬੰਨੋ, ਬੱਕਰਾ ਲਿਆਓ, ਛੋਟਾ ਹੈ ਬੱਚਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਬੱਕਰਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਛੋਟਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਨਹਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਟੁੱਟਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਿਰ, ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪੱਟ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦੱਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਬੰਨੋ। ਅਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀਰ ਨਿਗਾਹੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਏ। ਪੀਰ ਨਿਗਾਹੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ ਉਹਨੂੰ, ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਦੇਖਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਦੀ ਗੇਟ 'ਚ ਪਾ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ 3 ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। 3 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਊਂਡ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਟੀਚਰਾਂ ਵੀ 12 13 14 20 20 ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਵਿਕ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, 2-3 ਪਲਾਟ ਵੀ ਵਿਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਦੀ ਗੇਟ 'ਚ ਪਈ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜੇ ਉਹ, ਫਿਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਅਮਰਜੀਤ ਭਗਤ ਜੀ ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, 4 ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਰੁੱਸ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਰੁੱਸ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੁੱਸ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਸੀ, ਦਰਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਚਲ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਸੀ ਵੱਡੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਬੱਚਾ ਗਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਚਿੰਚੀਆਂ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਗਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਆਸ ਮੁਕਾਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅਮਰਜੀਤ ਭਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੁੜਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਫੇਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਫੇਰ ਵੀ ਮਨ ਖਰਾਬ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੜਾਉਣੇ ਆ, ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੁੜਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਸਲਾਹ ਲਾਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਔਰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਾਮ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਮੰਮੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ, ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਖੁਸ਼ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ। 1 ਹਫ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਕਾਕਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਨੂੰਹ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੰਡ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੰਡ ਪ੍ਰਣਾਮ ਛੋਟੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋਈ, ਜਨਮ ਇਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੰਮਦੀ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ 1 ਵਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਦੰਡ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆ ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ ਕਿਸ਼ਨ ਭਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਵੀ, ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ। ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, 5 ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨੁਕਸ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਰਟ 'ਚ ਨੁਕਸ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ 1 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਲੱਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੇਫੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਤੇ ਫੇਫੜੇ। ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਘਰ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਹੱਤਿਆ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਰੇ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਈਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਆ, ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਦੇਖਣਾ ਮਿਸੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼, ਬੇਟੇ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜ ਹਸਪਤਾਲ ਮੰਨਿਆ ਦੰਨਿਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਪੈਸਾ ਨਾ ਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ।
ਅੱਜ ਹੋ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਪਿਲਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਿਲਾਇਆ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਗਰੇਟ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਕੋ ਹੋਟਲ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਧਰ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ 1:30 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਗਗਰੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਮ ਇੰਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ ਉਤਰ ਕੇ, ਰਸ਼ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਤਰ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੰਘਣੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਵੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਸੀ ਲੜਕਾ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਟਰੱਕ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟਰੱਕ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਣ ਦੀ। ਟਰੱਕ ਨੇ ਪਲਟਾ ਖਾ ਕੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਟਰੱਕ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ 6 ਟਾਇਰ ਸੀ ਟਰੱਕ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਟਰੱਕ ਲੰਘ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਸਿਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਤਾਂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਆ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੇਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਹਮਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਲਿਮਕਾ ਲਈ, ਆਪ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤੀ, ਉਹ ਲਿਮਕਾ ਪੀਤੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਟਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਕਿਉਂ ਨਾਸਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ, ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਹੌਸਪੀਟਲ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ। ਬੇਟਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 12 ਵਜੇ ICU ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਘਰ ਆਇਆ। 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਮਹਿਤਪੁਰ, ਅਸੀਂ ਬੂਟੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੌਦੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੌਦੇ ਆਏ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਔਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਦ ਚਾਰੋਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ, ਗੀਤਾ ਜੀ, ਬਾਈਬਲ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਇਜ਼ ਗੋਡ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਹਿ ਭਗਤ ਜੀ, ਸਹਿ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।